Hello everybody, welcome back to my channel Learning English with Yasvi. So today I am going to tell you about the Honeycomb book textbook for English class 7th. Chapter 1 we are going to do today with point to point explanation, English to Hindi translation even. Okay, so first chapter name is 3 questions. So let us start. So this is part 1 of the video. Okay, so let us start with the point to point explanation. So let us start with the first part. The thought came to certain king that he would never fail if he knew 3 things. So this means in Hindi that राजा के मन में एक विचार आया कि अगर उसे ये 3 चीज़ का आंसर पता होगा तो वो सबसे अच्छा किंग कहलाएगा. These 3 things were, ये 3 चीज़ें थी. What is the right time to begin something? कुछ भी चीज़ चालू करने के लिए सबसे सही समय क्या है. Second, which people should he listen to? वह कौन से व्यक्ति को सुने. And third, what is the most important thing for him to do? उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer 3 questions. राजा ने मैसेंजर्स भेजे किंगडम में कि वो जो भी पीपल इसका आंसर देंगे उसको बहुत ज़्यादा रुपीस दिए जाएंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, पर सभी के आंसर अलग अलग थे. किसी का आंसर सही नहीं था. In reply to the first question, some said that the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले प्रश्न के उत्तर में कई लोगों ने बोला कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at his proper time. लोगों ने बोला यही तरीके से वो प्रॉपर टाइम पे चीज़ कर सकेंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरे लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है एडवांस में, यानी कि पहले से ही कुछ भी चीज़ का सही टाइम वगैरह बता देना. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures. आधे लोग बोलने लगे कि किंग को ये बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सब फूलिश बातें हैं, काम की नहीं है ये बातें. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम. और उसको जो समय पर सही लगता है वो ही करना चाहिए. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड काउंसिल ऑफ वाइज मैन. आधे लोगों ने बोला कि उसको ईमानदार या फिर सच्चे बुद्धिमान इंसानों की हेल्प लेनी चाहिए टू डिसाइड द प्रॉपर टाइम. उसको प्रॉपर टाइम पता चले उसकी वजह से. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान दूसरे की हेल्प के बिना वो एक्शन का या राइट टाइम पहचान नहीं सकता है. But then others said that there were some things which could be urgent. आधे लोगों ने बोला कुछ चीज़ें अर्जेंट भी हो सकती है. These things could not wait for the decision of the council. इसका मतलब ये है आधी चीज़ें काउंसिल के डिसीजन तक वेट नहीं कर सकती हैं. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. अगर हमें राइट टाइम जानना है तो उसके लिए हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा. And magicians could do that. यानी कि जादूगर लोग ही ये चीज़ कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. तो आधे लोगों ने बोला कि किंग को अभी मैजिशियंस के बाद जाना पड़ेगा, यानी कि जादूगर के पास. सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू. इसके आंसर में लोगों ने क्या कहा वो देखते हैं. इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselors. आधे लोगों ने बोला काउंसिलर्स जरूरी है. Others said the priest लोग जरूरी है. Few others choose the doctors. आधे ने बोला डॉक्टर्स जरूरी है, आपको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए. And yet other said that his soldiers were the most necessary. आधे लोगों ने बोला सोल्जर्स नेसेसरी है. थर्ड क्वेश्चन क्या था,
What is the most important thing for him to do? Now let us see the answer to this question. To the third question, some said that scientists, others choose fighting and yet other religious worship. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आधे लोगों ने बोला साइंटिस्ट, दूसरे लोगों ने बोला फाइटिंग और आधे लोगों ने बोला रिलीजन वर्शिप यानी कि मंदिर वगैरह. As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. किंग को आंसर इतने डिफरेंट मिले कि वो सेटिस्फाइड नहीं था तो उसने रिवॉर्ड नहीं दिया किसी को भी. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. तो उसने क्या सोचा, हम लोग hermit की एडवाइस लेते हैं. hermit कौन होता है? So here in the glossary it is written that the person who lives alone and lead a simple life, जो अकेले रहते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं. तो जो किंग है उन्होंने सोचा कि हम उसकी एडवाइस लेते हैं, वो शायद हमें कोई सही सलाह दे. The hermit lived in a wood which he never left. जैसे तो लिखा हुआ है कि वो अलोन रहते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं. तो ये जो hermit था वो वुड्स में रहता था और उसने वो जगह कभी भी नहीं छोड़ी. He saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes. जो hermit था वो सिर्फ साधारण लोगों को ही देखता था. तो फिर जो king था वो क्या करता, तो king ने अपने कपड़े चेंज करके ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए यानी कि साधारण इंसान के कपड़े पहन लिए और फिर वह गया हर्मिट से मिलने. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद द बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. तो किंग ने क्या किया कि जो हर्मिट था वो तो सिर्फ साधारण मतलब लोगों को ही देखता था. तो किंग हॉर्स पे तो नहीं जा सकता था उधर, तो उसने क्या किया, हॉर्स पीछे ही छोड़ दिया, हट के थोड़ा पीछे साइड ही छोड़ दिया अपने एक बॉडी गार्ड को रख के और फिर गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द हट. तो जैसे ही किंग वो हर्मिट के हट के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जो ये हर्मिट था वो एक इधर दग कर रहा था ज़मीन को. He greeted the king and continued digging. उसने किंग को ग्रीट किया कि जैसे हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ऐसे ग्रीट किया और फिर डिगिंग चालू कर दी. डिगिंग यानी कि इधर खोदना चालू कर दिया. The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. जो हर्मिट था ना वो थोड़ा बूढ़ा था और उसमें इतनी ताकत नहीं थी इतना काम करने की. तो जैसे वो काम कर रहा था वो ब्रीथिंग हैवीली करता था, जैसे हम लोग करते हैं ना ऐसे, वो ऐसा कर रहा था. द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस. तो किंग हर्मिट के पास गया और उसने पूछा कि मेरे को 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? Affairs means the thing, matter or the business. It is in the glossary. Then the hermit listened to the king but did not speak. जो hermit था उसने सब बातें सुनी पर उसने कुछ बोला नहीं. फिर he went on digging. You are tired, said the king. वो खोदता गया. फिर king ने बोला तुम बहुत थक गए होगे. ऐसा किसने बोला? किंग ने बोला हर्मिट को. लेट मी टेक योर स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. तो किंग ने क्या बोला कि आप मेरे को ये आपका जो स्पेड यानी कि जो टूल होता है जिससे खोदा जाता है वो मेरे को दे दो तो मैं आपकी जगह पे काम करूँगा. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसने अपनी स्पेड यानी कि टूल किंग को दिया और फिर ग्राउंड पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave the answer but stood up. Instead giving answer, the hermit stood up. यानी कि king 2 beds यानी सोने वाला नहीं, ये small patches होते हैं ग्राउंड पे जहाँ पे खेती की जाती है. तो उसने वो जैसे ही ऐसे दग किया यानी कि खोदा, फिर रुक गया और फिर पूछा अपना क्वेश्चन. पर जो हर्मिट था उसने आंसर नहीं किया, वो खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, उसने अपने स्ट्रेच किए हैंड्स को. एंड आस्क्ड फॉर द स्पेड एंड सेड दैट नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. फिर उसने बोला कि मेरे को वर्क करने दो, आप अभी रेस्ट कर सकते हो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. किंग ने उसको स्पेड नहीं दी यानी कि जो वो टूल था वो नहीं दिया और अपना काम करने लगा.
1 hour passed, then another. The sun went behind the trees. एक 1 hour ख़त्म हो गया, 2 hours ख़त्म हो गए और जो सन था वो चला गया ट्रीज़ के बिहाइंड यानी कि ट्रीज़ के पीछे. And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. You can give me no answer? Tell me so and return home. किंग ने जो टूल था वो ज़मीन के अंदर घुसा दिया और फिर बोला कि मैं आपके पास बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? आप मेरे को बताओ तो फिर मैं अपने घर चला जाऊँ. Here comes someone running. ये किसने बोला? हर्मिट ने बोला कि कोई भागता हुआ आ रहा है. Okay, now let us do comprehension check. First, why did the king want to know the answer to the 3 questions? The king want to know the answer to the 3 questions because he want to become a powerful ruler, intelligent ruler and all, etc. Thank you.